मॉलिक्यूल का मतलब है यहाँ पर कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट this one like carbohydrate hai, amino acid hai, and we have this one like vitamins and minerals. तो ये amino acid is a smaller part because जब हम प्रोटीन की बात करते हैं so proteins are basically you can say polymeric form of amino acid. amino acid का ये polymeric form है and so we'll be looking at that amino acid के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर. So the heading is amino acid, and so when I say amino acid this would be like this amino acid. Amino acid. As the name suggests, amino acid. So this name has two things. इसके नाम में ही दो चीजें हैं जो हमें बहुत ही बढ़िया से समझना है. Number one, first is amino. So amino or amino is coming from amine. So this is coming from amine, and this one is acid. So this acid is coming from carboxylic acid. Carboxylic acid. So essentially what we can say, if I just combine these two, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वैसे compounds having NH2 and COOH group are collectively known as amino acid. So when I say like that, in that case, what we just need to know the relative position of this amino acid, again very important, in the sense कि we classify them as alpha, beta, gamma. Alpha, beta, gamma amino acid हमने कहा है. So that means what? इसका क्या मतलब है कि यदि हमारे पास alpha position पे presence of NH2 at alpha position. At alpha is called alpha amino acid. For example, suppose जैसे मैंने यहाँ पर ये COH लिख लिया, यहाँ पर ये COH है और यहाँ पर मैंने NH2 लगा दिया, तो क्या हो गया? दिस इज योर अल्फा एमिनो एसिड हो गया ये वाला. But on this other hand, if I would have taken this is at beta position, like this one, beta is just next to this alpha, so we can say COH और यहाँ पर मैंने इसमें ये यहाँ पर NH2 लगा दिया, तो ये हो गया हमारा बीटा, ये वाला बीटा है. सिमिलरली गामा में क्या हो जाएगा? थर्ड फ्रॉम दिस वन, एट गामा के लिए ये कह सकते हैं हम लोग इसमें एट गामा में गामा पोजीशन पे जोड़ देना है यहाँ पर COH, ये लिखा, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है. सो जस्ट अटैच NH2 हियर. सो दीज आर अल्फा, बीटा, गामा एमिनो एसिड हो गया. बट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड ही पढ़ना है. सो वी आर मेनली कंसर्न्ड विद अल्फा एमिनो एसिड. So when I say alpha amino acid, this is further classified into two parts. One is essential, another is non-essential. Essential and non-essential. जब essential और non-essential में इसको classify करते हैं, so what do you mean by this essential and non-essential का मतलब क्या होता है? So we can remember here, essential और non-essential में ये कई बार हमें ऐसा दिखाई महसूस होता है इसमें कि essential है तो ये बॉडी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. So it seems like कि ये बॉडी में होना चाहिए, ऐसा महसूस होता है कि इसको बॉडी में होना हमारे लिए जरूरी है. बट एक्चुअली essential मतलब ये होता है कि those amino acids which are amino acid which are outsourced. Outsourced का मतलब है कि जो हम लोग बाहर से लेते हैं, यानी the acids which are taken from outside, or not synthesized in our body. So that are called, we can say that is your essential amino acid है. जबकि non essential में क्या होगा कि वैसे amino acids, those amino acids which are
synthesized in our body is called non-essential amino acid. So in numbers, मैं इसमें कुछ important numbers की बात करूं तो 10 ये वाले हैं और 10 ये वाले होते हैं, दोनों ही 10 और 10 हैं। इसमें से हमें इस लिस्ट को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और ये काफी जरूरी है, ये वाला हमें याद रखना भी है। और ये एनसीईआरटी में जो पर्टिकुलरली मेंशन है ये 20 अमीनो एसिड्स, वो हमें स्पेशली ध्यान रखना है। एंड सो we'll be just doing one thing, जिससे आपको काफी इसको हेल्प मिल जाएगा कि इसको कैसे याद रखना है। So we can just remember one thing, that is one good story that we can just remember कि एक बंदा था जिसका नाम था गौली, and he had opened his spa. So he had named his spa as Gauli Spa, उन्होंने उसका नाम रख दिया। So some important की मैं बात करूँ यहाँ पर, some important amino acid like this one. So when I say this is first one, that is called Gauli Spa, as I have stated। ये वाला क्या था हमारे पास, ये Gauli Spa है, इसे Gauli GAVLI-SPA। This is Gauli Spa. This is one letter जो मैं देखूं यहाँ से, so we can say this is called, this G is basically used for glycine। glycine इसको हमें मार्क करके रखना है, so just remember to mark this one, Gauli Spa, इसको आप मार्क करके रखें। and so this is Gauli Spa है ये वाला। Gauli Spa. So this G is for glycine. The second one is alanine. Alanine. Second one is alanine. Third one is valine. Then this is leucine. This is isoleucine. This is serine. This is proline, and this is aspartic acid. Since we write them as ये तो Gauli Spa हो गया। दूसरा हमारे पास 3 letter abbreviation लोग यूज करते हैं, and so the 3 letter abbreviation is basically this one। ये हो गया 1 liter में, यही आ जाता है Gauli Spa में। जब बात करें यहाँ पर, so number 1 3 letter abbreviation is GLY से डिनोट करते हैं। Then this is called ELA, gly, this is ELA, this is val, this is LEU, this is ILE, this is SER, serine है तो SER, this is proline है तो PRO, and this one is ASP, aspartic acid। इसका 1 letter वाला है, ये 3 letter abbreviation था, 3 letter abbreviation। 1 letter abbreviation में आएगा इसका 1 letter में, this is G, this is A, V, L, I, this is serine है तो ये S, ये P। अब यहाँ पर ये A देखो यहाँ पर, in this case otherwise it is first letter, क्योंकि एलानिन का A यूज हो चुका है, therefore we write it as D। so this is GAVLI, Gauli SP, D आ जाता है यहाँ पर ये वाला। so this is 1 letter abbreviation of this one। Further, when we talk about their structure, तो स्ट्रक्चर को याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका कहने का यह मतलब है कि आप इसको एक सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। एंड सो इन दैट वे वी कैन से हियर कि ग्लाइसिन इज द मोस्ट सिंपल और सिंपलिस्टिक अल्फा एमिनो एसिड। यानी कहने का यह मतलब है कि ग्लाइसिन सबसे छोटा अल्फा एमिनो एसिड है। सबसे छोटा अल्फा एमिनो एसिड मतलब जितना, जिससे और छोटा हम बना नहीं सकते। एंड देयरफॉर द मोमेंट आई से सबसे छोटा एमिनो एसिड है, इसका मतलब यहाँ पर यह हो गया, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो COOH तो यहाँ पे रहेगा, ठीक। एक और कार्बन हमें जोड़ना ही पड़ेगा और यहाँ पर एक NH2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमने NH2 ऐसे जोड़ दिया। अब बाकी क्या बच गया, CH2, तो हमने CH2 लगा दिया।
ये है सिंपलिस्टिक और सबसे छोटा हमारे पास ये एमिनो एसिड आ गया। अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पर, यहां से लेकर के अप टू वी कैन से आइसोल्यूसिन तक इसी के होमोलॉगीज है, और चूंकि इन्हीं के होमोलॉगीज है therefore we can write them in different way like this। कुछ ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं like this। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, इसमें एक और हमें CH3 जोड़ना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, सो एलानीन वुड बी CH3, ये आ गया CH, यहाँ पर NH2 और ये COOH। वैलिन में क्या हो जाएगा, एक और CH2 जोड़ना है आपको एक्स्ट्रा, सो वी कैन राइट हियर दिस इज वैलिन इज CH3, CH, CH3, then this is CH, NH2, COH, then leucine and isoleucine। So when I say leucine, इसमें खूबी है, the moment I say isoleucine, तो आइसो जिसके नाम में आइसो है उसके स्ट्रक्चर में आइसो नहीं होता। रिमेंबर दिस वन, इसको ऐसे याद रखना है। क्या याद रखना है यहाँ पर, कि जिसके नाम में आइसो है उसके स्ट्रक्चर में आइसो नहीं है। एंड व्हेन आई से आइसो, आइसो का मतलब होता है कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उसके ऊपर एक CH3 होना चाहिए। एंड सो फॉर दैट पर्पस वी कैन राइट हियर, तो ये, और जिसमें आइसो नहीं है उसमें आइसो ग्रुप प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ल्यूसीन हमने कहा, तो इसमें आइसो ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे हमने ऊपर में देखो यहाँ पर ये CH3 CH है, ये वाला CH3 दिस इज योर आइसो ग्रुप है ये वाला, तो ये CH3 लिखा हमने, ये CH और ये CH3 लिख लिया। अब इसके बाद एक और CH2 जोड़ दो, फिर यहाँ पर ये CH और यहाँ पर ये NH2 और ये COH, ये बन गया। देन वी हैव, अब इसी में फिर देखना है यहाँ पर, जब आइसोल्यूसिन कहा हमने, सो इन दिस केस द स्ट्रक्चर वुड बी अ बिट डिफरेंट इन दिस वे, कुछ इस तरह का बन जाएगा, यानी अदर वन इज दिस CH3 देन CH2, ये वाला देखो यहाँ पर, ये वाला CH2 आ गया, फिर ये CH और ये CH3 देन CH NH2 एंड हियर इट इज COH, ये वाला आ गया। देन दिस वन इज आइसोल्यूसिन हो गया। नाउ वी हैव सेरीन, serine is nothing but this is treated as we can say alpha, this we can write here alpha hydroxyalanine, alpha hydroxyalanine, अल्फा हाइड्रोक्सीएलानिन बोल सकते हैं इसको। तो यदि मैंने अल्फा हाइड्रोक्सीएलानिन बोल दिया या हाइड्रोक्सीएलानिन बोल दिया तो क्या नाम आ जाएगा इसमें, एलानिन इज CH3 CH NH2 COH है, तो एलानिन में हमें क्या करना है, इसमें CH3 में से एक H लगा के OH लगा देना है। So just add one OH to this one, एक OH हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, तो HO लगा दिया यहाँ पर। अब इस HO के साथ यहाँ पे क्या आएगा CH2, फिर क्या आ गया हमारे पास CH NH2 COH। So this one is we can say this is hydroxy, we can say hydroxyalanine। इसको याद रखने के लिए ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, हाइड्रोक्सीएलानीन है ये। देन वी हैव प्रोलीन। प्रोलीन में क्या खूबी है, एक और खूबी है, अभी तक जो हमने देखा है यहाँ पर, इसमें क्या दिखाई दिया हमें, ये 1 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री एमीन है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री। प्रोलीन इज 2 डिग्री एमीन, पहली बार दिस इज 2 डिग्री, एक तो ये है, ये 2 डिग्री एमीन है। दूसरा ये साइक्लिक है, अभी तक सारा ओपन चेन था, ये वाला हमारा साइक्लिक भी है, तो साइक्लिक है और 2 डिग्री एमीन है, एंड देयरफॉर वी कैन रिमेंबर दिस एज, इसको हम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये N लगा दिया और ये ऐसे जोड़ दिया, ये H है और यहाँ पर ये COOH है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन, यहाँ पर ये वाला बन गया, NH ये वाला है और ये COH लगा दिया, ये 2 डिग्री एमीन और ये दिस इज व्हाट वी कॉल proline. Now after this proline we have D, which is aspartic acid, and this is nothing but carboxyalanine। carboxyalanine मतलब हो गया ये COOH, then CH2, then CH NH2 and COH। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से हमारे पास एमिनो एसिड्स थे जिसको हमें बढ़िया से याद रखना है, ठीक। So what and how can we remember, this is simply glycine,
alanine, valine, leucine, isoleucine, serine, proline and aspartic acid, right? सर इन सब में से कायरल सिर्फ ग्लाइसिन ही होता है ना सिर्फ, अकायरल सॉरी. So properties, so when I say properties, so amino acids may be also classified as amino acids may be classified as acidic, basic or acidic neutral or basic, acidic neutral और basic, and that all depends upon, चूंकि NH2 देखो इसमें बच्चों क्या था यहाँ पर कि एक NH2 है और एक COH है, तो ये दोनों आपस में जो क्या करेंगे न्यूट्रलाइज कर देंगे. तो अब इसका मतलब ये तो न्यूट्रल हो गया. अब इसके अंदर यदि मैं इसमें कहीं पर एक एसिडिक ग्रुप लगा दूं तो वो कैसा होगा अमीनो एसिड, वो एसिडिक हो जाएगा. यदि कोई बेसिक ग्रुप लगा दूं तो वो बेसिक हो जाएगा. यदि कोई न्यूट्रल ग्रुप लगा दिया तो वो न्यूट्रल हो गया. सो व्हाट वी जस्ट नीड टू रिमेंबर इज दैट क्योंकि एक COH और एक NH2 मिलके दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, देयरफॉर दिस इज सिंपल न्यूट्रल हम कह सकते हैं इसको. The moment we are adding some other group which are acidic in nature, that will make it acidic. यदि कोई न्यूट्रल ग्रुप लगा दिया तो वो न्यूट्रल बना के रखेगा, यदि कोई बेसिक लगा देंगे तो वो बेसिक बना देगा. एंड सो बेसिस दैट वी कैन सी कि वो रेसिड्यू कैसा बचा हुआ है जो हमारे पास an extra acidic group is present. जैसे मैं कहूँ कार्बोक्सीएलानीन, तो कार्बोक्सीएलानीन कैसा हो जाएगा, देखो इसमें COH और ये NH2 है, ये वाला क्या हो गया, ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो गया और ये COH है हमारे पास, सो वी कैन से कार्बोक्सीएलानीन इज एसिडिक हो जाएगा. न्यूट्रल में क्या होगा, नो ग्रुप, अ न्यूट्रल ग्रुप इज प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एलानीन कह दिया या वैलिन कह दिया, ल्यूसीन कह दिया, न्यूट्रल ग्रुप इज प्रेजेंट. देन वी हैव बेसिक, बेसिक में क्या होगा, a basic group is present, so here in this case मान लो जैसे हमने यहाँ पर ये ले लिया, like इसमें NH2 लगा देंगे ये, तो क्या बन जाएगा, so for example we can take it like this, so for this one we can say like basic की बात कर ले हम लोग यहाँ पर, तो basic में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाएंगे. नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल बेसिक में मैं यदि लूं, नंबर 1 ये आ जाएगा हमारे पास, 1 इज लाइसिन, LYSINE, लाइसिन, which is basically this one, NH2, H2N, CH2 whole thrice, then CHNH2 COH, ये हो गया. The second one that we can use here is basic का ये वाला है arginine, this one is, इसमें मैं स्टार लगा रहा हूं यहाँ पर, arginine is this one, NH, HN double bond, C, NH2, NH, CH2 whole thrice, CHNH2 COOH, right? So in this case again देखो यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, so we can say this is basic हो गया ये वाला. This again a star mark is there. Then we can take it like this. The next one is histidine. Histidine is this one, CH double bond C, now N double bond CH, यहाँ पर ये NH आ जाएगा. Then we have this CH2 CH COOH और ये NH2. So these are all basic amino acids हमारे पास है. So these are all again basic है. Star का मतलब है यहाँ पर कि essential को हम लोग ऐसे हम लोगों ने star से mark कर रखा है. So among these other are also like जो हमारे पास valine है. Valine is again we can say valine and leucine and isoleucine. So these are also essential amino acids में आते हैं. So these are called basic. Similarly we can take over. हाँ जी. सर हमें बायो में पढ़ाते हैं कि हिस्टिडीन और आर्जिनिन सेमी एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल 8 होते हैं और ये दोनों सेमी एसेंशियल होते हैं.
हाँ, अब दैट वे वी कैन से, बिकॉज जो हम लोग मतलब एनसीईआरटी पे है उसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो उसमें सेमी एसेंशियल तो है, सो इट इज ऑलमोस्ट सेम थिंग है। मैं दोनों में बात करें हम लोग यदि यहाँ पर these are examples of basic, so similarly we can take some acidic में ले लेते हैं यहाँ पर, so some acidic वाले में जैसे हमारे पास आ गया acidic में we already have seen, तो हम लोग ऑलरेडी सर ये देख लिया। स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ेंगे क्या? हाँ, so acidic we already have seen it like that, number 1 जैसे हमने ग्लूटामिक देखा है यहाँ पर, एक तो हमारे पास ऑलरेडी aspartic acid कहा था हम लोगों ने, एक और हमारे पास आता है ग्लूटामिक एसिड, so we can see here glutamic acid, glutamic. So when I say glutamic acid, that would be HCOH, वही इसी में क्या हमने एक जो स्पार्टिक एसिड था उसमें एक और CH2 जोड़ दो, यानी उसी में हमने एक और ऐड कर दिया CH2 CH और ये NH2 है यहाँ पर, ये आ गया। So this is your glutamic acid, this is again acidic है। तो acidic में in effect what we have got is क्या क्या मिल गया हमें, so we have seen here in acidic like एक glutamic हो गया, दूसरा स्पार्टिक हमने देख लिया था, ठीक है, और तीसरा हमने यहाँ पर ये इवन जो हाइड्रोक्सी एलानिन है वो भी हमारा क्या होगा, एसिडिक ही होगा, दिस इज अगेन एसिडिक ही है ये वाला भी। सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ एसिडिक, और जो बाकी हमने देखा वहां पर वो वाले न्यूट्रल थे। सर यहाँ पे एनसीईआरटी में, हेलो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड, number 1 when I say amino acid, so since in this case जब हमने amino acid का स्ट्रक्चर लिखा है हमने यहाँ पर, तो ये RCH2 और ये COOH है, COOH और ये NH2 लिखा हमने यहाँ पर, so there is intramolecular acid base reaction possible है, and therefore it will be forming, यहाँ से क्या बना सकता है यहाँ पर, ये RCH2 COO minus और यहाँ पर ये NH3 plus बन गया। So we can say there is negative charge and a positive charge. So we can write here this is charged species है ये, charged species. When I say this is charged species, therefore this is basically क्या है, ये electrically neutral है, electrically neutral. अच्छा, now using this one, if I ask you what would be its solubility in water, solubility in water की मैं बात करूं यहाँ पर, तो बहुत ही सीधी सी बात है कि like dissolves like, so here we can say solubility in water जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि इसमें आयनिक है यानी जो इसमें चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा, and therefore in effect we can say here these are miscible with water. What is meaning of this one? Miscible with water means the term जो soluble है miscible है, दोनों में फर्क होता है। When I say miscible means that can be mixed in all proportion, and so this is highly soluble कह सकते हैं इसको। So these are highly soluble in water, ये जो amino acid होते हैं ये highly soluble है water में। दूसरी बात यदि मैं इसमें देखूं यहाँ पर, so if you look at the forces, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, so you must remember here these have, ये जो हमारे पास CH2 और ये COO minus है, COO minus, और यहाँ पर ये NH3 plus, and this is again OO minus, COO minus, यहाँ पर ये CH और ये NH3 plus. So there is strong electrostatic force of attraction, बहुत strong इसमें force of attraction होगा, and so this is leading to, we can write here electrostatic force of attraction होने के कारण से यदि मैं इसका नेचर की बात करूं, हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, this must be very stronger, due to stronger force this is existing in solid form, due to very strong force it exists in solid form में ये exist करता है। फिर देखें वहां पर further, if you add to this one, we can see here next thing that we can see is, apart from, if you look at the basic structure of this one, so we can see here
कि ये वाला हमारे पास काइडल नहीं है, क्योंकि इसके जो ग्रुप्स हैं वो हर एक में क्या है कि 2H यहाँ पे आ गया, बट ऑल अदर देन दिस वन आर काइडल इन नेचर, मतलब बाकी जितने भी होते हैं एमिनो एसिड्स दैट आर काइडल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइडल कार्बन. सो except glycine, all are chiral, सारे सारे chiral है and therefore optically active, therefore these are optically active होते हैं. Then this is again very important, and so you must remember here, at all pH they exist in charged form. Remember, I am not saying कि net charge की बात नहीं कर रहे हम लोग. Net charge will remain constant. But what I am saying here is कि कुछ भी हम pH कर दें, कैसे भी pH कर दें, तो वो हमेशा रहेगा, उसमें चार्ज प्रेजेंट होना ही होना है. कभी पॉजिटिव चार्ज होगा, कभी नेगेटिव चार्ज होगा, कभी कुछ होगा, बट देयर मस्ट बी कुछ ना कुछ जो हमारे पास रहेगा, वो हर pH पर वो चार्ज फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे. दैट इज फॉर श्योर, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट. इसी बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं.